morning, friends. This is Sanjay Agarwal. I'm with the lady. She is the president, is it? Secretary. The secretary for the Navjeevan Vihar. Resident Welfare Association. This is near to Malve Nagar. Today we are here. We are celebrating the World Environment Day. So we just had the governor, Lieutenant General Gurmeet Singh, address us. So ma'am was given an award and she was told to keep her area, the society clean. Then we have these two young girls who are holding these play cards. No pollution, and this is, what does it say? No burning. So no burning of what we do, trees, and then we say that our environment is not clean. So ma'am, today here we are at Pragati Maidan. There's an exhibition going on, the World Environment Expo. This is on from the 4th of June, it's up till the 6th. Today we are there here on the 5th. You can come in tomorrow also. So there are lot of stalls here, people who are into electric vehicles and a lot of other stuff. So ma'am, what do you feel about, you want to talk about your association? Yeah, so I'm really grateful to the organizers, Gunarva, Colonel Tyagi, and all the distinguished members who have been a part of this expo. It's one of its kind exhibition. Environment for most of us is last on the priority list. Let me be very honest. We have a fast life, we have a fast city, so somewhere we tend to ignore what kind of impact we are giving on the environment because of our lifestyle. So I'm really glad that organizations are coming up, they're stepping forward, and they're pushing the environment up in our priority list. So, speaking for myself, I'm the secretary for a small colony called Navjeevan Vihar, and we converted this into a model colony. For the last 3 years, we have been segregating our garbage 100%, and we are also practicing wet waste composting inside the colony. So, nothing, when I say nothing, none of the garbage leaves the colony and ends up on a landfill site. I'm also the brand ambassador for our Municipal Corporation of Delhi for Swachh Sarvekshan 22, and I help the corporation build my model in other colonies as well. So here I would like to say that the resident welfare associations have a very important role to play when it comes to waste management and sustainability. It's our responsibility to not only make our residents aware what is the impact that we are having on the environment and how to reduce our negative impact on the nature. So apart from that, there are loads of initiatives that the RWAs can take up, whether it is waste management, whether it is save water, and we've done pretty much in our colony, and we'll be more than happy in case anybody wishes. They can contact us in Navjeevan Vihar, and we'll be more than happy to guide you, handhold you, and support you. So this Environment Day, I would like to say, it's one earth only. So let's try our level best to give a cleaner, a greener, and a safer environment to our children. Otherwise, the future generations will never forgive us. Thank you so much. Ma'am, you're a doctor. Yes. So you're a medical doctor. So what profession? What are you? I'm what an eye field? specialist. You're an eye specialist. Okay. Why since I just brought this topic, since you're a doctor, so you're the one who's enlightened, and then we have different type of waste, So about hygiene, personal hygiene. And also, when we talk about wet, dry, so do you segregate all this different kind of waste at the household level? At the household level. So I want you कि हिंदी में आप बोलिए आप, so that people can understand, वो follow करें कि अगर एक घर में क्या क्या waste निकलता है. It could be with medical waste, injection syringes, right? It could be then sabji, everything. So ma'am, हिंदी में please. जी. 3 minutes. तो हम जो हैं, हम सारे जो हम कहते हैं इंडिविजुअल, एक इंसान कचरा पैदा करता है घर पे. वी आर दी वेस्ट जनरेटर्स. हम लोग घर में कचरा उत्पन्न करते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम उस कचरे का संचालन ठीक तरीके से करें ताकि पर्यावरण के ऊपर इसका गलत असर ना हो, प्रदूषण में वृद्धि ना हो. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रदूषण को कम कर सकें. तो कचरा, जब मैं कहूँ तो कचरा ब्रॉडली, मतलब बहुत बड़े तौर पे हम 3-4 कैटेगरीज़ की बात करें. अभी तो कुछ ऐसी प्रदेश हैं जो 16
कैटेगरीज में 16 अलग श्रेणियों में कचरा संचालन कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआत के लिए अगर हम गीला, सूखा और ख़तरनाक कचरा, ये 3 कैटेगरीज़ को, ये 3 श्रेणियों को अलग अलग करके दें कचरे वाले को, तो काफ़ी हद तक कचरे की समस्या का समाधान हो सकता है। गीले के अंदर आती हैं हमारी फल, हमारी सब्जियां, बचा हुआ खाना, छिलके, अंडे के छिलके। तो ये सारा जो कचरा जिससे हम खाद पैदा कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, वो गीले में आता है। सूखे में आता है प्लास्टिक, कांच, शीशा, आपके कागज़, कार्डबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपके सूखे में आती हैं। और ख़तरनाक जो कचरा होता है उसके अंदर आता है आपके डाइपर, सैनिटरी पैड, इंजेक्शन जैसे इन्होंने बताया, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, ये सारा ख़तरनाक, जिस चीज़ से आपको इन्फेक्शन हो या चोट लगे वो ख़तरनाक में आता है। जिस चीज़ से खाद बने वो आपका गीले कचरे में आता है और बाकी बचा हुआ सूखे में। तो अभी हमें सिर्फ इन 3 श्रेणियों में ही अगर हम कचरे को अलग अलग करें तो 70% तक समस्या का समाधान हो सकता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कॉरपोरेशन जो है गीले कचरे से खाद बना सकती है। आप अपनी कॉलोनी में बना सकें, बहुत अच्छा, नहीं बना सकें तो जो आपकी कॉरपोरेशन है वो गीला कचरा उठाएगी, उससे खाद बनाएगी। जो सूखा है उसे हम रीसाइकिल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और जो ख़तरनाक कचरा है वो बिना किसी को चोट पहुंचाए या इन्फेक्शन दिए हम उसे सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 कैटेगरी में कचरा अलग कीजिए, गीला, सूखा, ख़तरनाक। पन्नी का प्रयोग मत करिए, कपड़े के थैले को इस्तेमाल करिए। एक पन्नी जो कि आम तौर पर हम सिर्फ 12 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पर्यावरण में 500 से 1000 साल तक घूमती रहती है। तो अब आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें बीमारी की जड़ हैं। जो आजकल कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं, लंग डिजीज़ हो रही हैं, फेफड़े की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, वो सब इसी प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। तो कृपया करके प्लास्टिक का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक नहीं, सिंगल यूज़, एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, जिसमें पन्नी सबसे बड़ा कारण है, प्लास्टिक की पानी की बोतल है, इस तरह की चीज़ें, स्ट्रॉज हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, प्लास्टिक चम्मचे हैं, इनका इस्तेमाल कम करिए। और इनके ऑल्टरनेटिव माने विकल्प जो उसकी जगह पे अब मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे आराम से, उसका इस्तेमाल करिए। आपकी एक छोटी सी आदत पर्यावरण को बचाने में सार्थक होगी। थैंक यू। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है दैट यू हैव टू डू इट, पहल अपने घर से शुरू करना है आपको। एंड नॉट ओनली पर्यावरण, आई ऑल्सो से हमारे साथ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कि टुडे दे आर एडवोकेटिंग अबाउट दिस एनवायरनमेंट। तो नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, से नो टू अल्कोहल, से नो टू ड्रग्स। और आप अपना नाम बताइए। गोविंद, आप क्या करते हैं गोविंद? मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं। तो आज आपको ओके मैम, थैंक यू, प्लीज शेयर मैम, कम। सो आपको कैसे लग रहा है एनवायरनमेंट डे पे आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे एक लाइन में? युवाओं के लिए बोल दीजिए। युवा के लिए एक ही बस, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए। जैसे आप लोग हैं ये सब, हाँ। सफ़ेद, सो क्लीन। व्हाट्स योर नेम? काजल। कैमरा। माय नेम इज़ काजल सर। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? सर अभी तो मैं कॉलेज कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। ओके, सो अच्छा लग रहा है आपको टू बी हियर वॉलंटियर? यस सर। योरसेल्फ? सृष्टि। क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएट कर रही हूँ मैं। अच्छा लग रहा है आपको इधर? हाँ जी। योर नेम? हनी। ओके, आप क्या कर रहे हैं? मैं 12th क्लास में हूँ, स्टडी कर रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है एनवायरनमेंट? अच्छा लग रहा है। ओके, आपका नाम? अभिषेक सिंह। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ डेवलपर पोस्ट पे। अच्छा, और आज मैं सीनियर हैं सबके? हाँ, बिकॉज मैं देख रहा था, इनको मैंने इसलिए बुलाया, वो सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर बॉसिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा आपको कैसे लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है। मैं खुद आया हूँ आज एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। एक्चुअली मैं युवाओं को ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल बड़े बड़े पेड़ जो हमारे 100 साल से लगे हुए थे वो आजकल कटते जा रहे हैं। आंधी तूफान आता है, 1000 साल 100 साल पुराने पेड़ गिर जाते हैं। क्यों? हमारी लापरवाही की वजह से। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, इधर आ जाएं आप। कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। हाँ। जो पेड़ के आसपास जड़ों के आगे वो सीमेंट लगा रहे हैं, हाँ। ग्रेनाइट लगा रहे हैं, तो इस पर रोक लगाना पड़ेगा। रोक लगाना पड़ेगा। ऊपर से क्या कहते हैं, हम युवाओं को पेड़ लगाने भी पड़ेंगे, तभी जो ग्रीनरी बढ़ेगी, तभी तो हम लोग का पोल्यूशन अच्छा होगा। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे साफ सुथरा माहौल रहता है? हाँ, मैं ग्रेटर नोएडा सिटी से हूँ। वह ग्रीनरी सिटी है, अच्छी सोसाइटी है,
सो वी आर लकी टू हैव अ पर्सन जो कि एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं। मैं रह रहा हूँ करोल बाग में, तो मेरे पड़ोसी मेरे घर में टूथपेस्ट का कचरा फेंक रहे हैं, कोई टूथब्रश भी फेंका उन्होंने, है ना। सिगरेट शराब का तो आप बात ही मत करिए, मतलब तो कुछ कह नहीं सकता मैं। आपके घर के पास कैसा माहौल है? मेरे घर के पास भी ऐसा ही है, समझ लो। यहाँ का कूड़ा वहाँ का कूड़ा है, एक दूसरे के ऊपर। हम लोग को मतलब और लगता है कि मतलब अच्छी जगह जाए। आपके घर पे बहुत अच्छा माहौल है। साफ है आपका? मेरा भी ऐसे कूड़ा कचरा फेंकते हैं हम, कितना भी नहीं सर, हमारे घर के आसपास तो साफ सुथरा है काफ़ी। नहीं, मैं तो खुद साफ करता हूँ। मैं अगर टॉफ़ी अभी खाऊंगा अंदर जाके तो उसका कचरा अपनी जेब में रखूँगा, है ना। दिल्ली हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है। अब आप न्यू दिल्ली चले जाइए, वहाँ माहौल ठीक है, लेकिन आप ओल्ड दिल्ली जाइए, आपको लगेगा नहीं आप दिल्ली में हैं। एक सरकार से, अगर सरकार हमारी सुन रही है, जैसे मैडम ने बोला कि मैं MCD की वो ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ जो डॉक्टर साहब थी, तो क्योंकि मैं मिनिस्ट्रीज़ कवर करता हूँ मैं, और हम लोग NDMC एरिया में घूमते हैं, तो NDMC एरिया स्टार्ट होता है बिरला मंदिर से आगे से, और वो समझ लीजिए लूटन्स दिल्ली है जहाँ पे इंडिया गेट है, सरकारी दफ्तर है, तो वहाँ पे स्वच्छता है और वहाँ पे टॉयलेट्स हैं जो कि अच्छे टॉयलेट्स बने हैं, और कुछ टॉयलेट्स का मिसयूज़ हो रहा है। एक बार मैंने NDMC के टॉयलेट्स हैं तो NDMC वालों को बोला एक मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर टॉयलेट में एक विमेन टॉयलेट है, एक जेंट्स टॉयलेट है, अब टॉयलेट बना है वहाँ पे टैक्सी वाले हैं उस टॉयलेट के बाहर, तो मैंने देखा कि वो लोग विमेन टॉयलेट में जा रहे हैं, तो मैंने चेयरमैन NDMC को बोला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा ऐसा हो रहा है, हम देख करते हैं, लेकिन हम लोग तो उनसे लड़ नहीं सकते जो जा रहे हैं, जबकि उन्होंने गार्ड रखा हुआ है। फिर भी मतलब ये चीज़ें मीडिया के, मतलब यार सोशल मीडिया का भी मैंने कल एक सर्वे फॉर्म भरा, तो उसमें था कि सोशल मीडिया से शायद ये चीज़ें। और दूसरा MCD वालों को ये है कि MCD क्षेत्र में अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं आसपास, तो वो पुराने स्टाइल के ही टॉयलेट हैं जहाँ पे लोग खड़े होके ऐसे ही, मतलब कोई क्लोज टॉयलेट्स नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने इतना पूरा लेडीज़ का वो टॉयलेट का पूरा करा है इन्होंने, तो आई थिंक अभी दिल्ली में जो हम लोग, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में अभी काफ़ी एरियाज़ में, जैसे आप लोग ने बोला ज़रूरत है, तो हम लोग का मतलब रिक्वेस्ट है, जैसे ये यंग पीपल हैं कि फ्यूचर हैं ये लोग, तो ये लोग चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, और स्पेशली राजधानी में एक हम लोग एग्जाम्पल सेट करें। हरदम जब स्वच्छता के ऊपर मेडल मिल रहा है तो इंदौर को मिल रहा है, और यहाँ पे वो गाड़ियाँ चलती हैं सुबह, गार्बेज कलेक्शन की होती हैं। अब मेरे सिस्टर वहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ अपना मैसेज देते हैं वो, लेकिन वहाँ पे वो कलेक्शन करते हैं। और दिल्ली में मेरे घर के सामने गाड़ी नहीं रुकती है, मतलब अगर मैं उनको बोलूँगा तो बोलेंगे अच्छा भैया आपका कोई कचरा कूड़ा लेने नहीं आता क्या, बिकॉज वो लोकल जो स्वीपर्स होते हैं उनका वो एक नेक्सस बना होता है कि मैं उनको कुछ मंथली पेमेंट करूँगा कचरा उठाने के लिए। तो गार्बेज वैन्स घूम रही हैं, बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव। आप लोग के एरियाज़ में भी गार्बेज वैन होगी तो इफेक्टिव पूरा नहीं है। तो अगर ये मैसेज जाए हमारे किसी के मतलब उच्च अधिकारी को जाए तो वो लोग उस पर एक्शन लें। राइट, थैंक यू, बाय।